Hey guys, my name is Ritesh and I welcome you again to my channel India's Tech Things. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स when we were in our 20s or 30s. So we all did those mistakes और उसको हम जो अपने 40s या 30s के लेट 30s में आते हैं तो रियलाइज those mistakes, वो फाइनेंशियल मिस्टेक कौन सी थी जो मैंने अपने पहली जॉब के बाद करी थी. सो उन इस मिस्टेक्स को रियलाइज़ कराने के लिए आई कैम विद दिस वीडियो कि जो नए यंगस्टर्स हैं जो अभी कॉलेज में हैं या जिन्होंने अभी 20s में है और कमाना चालू करा है, तो एटलीस्ट वो लोग ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स ना करें जो कि हमारी जनरेशन या हमारे पहले वाली जनरेशन ने करी थी. तो एट द एंड ऑफ वीडियो यू विल बी एबल टू नो कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है अपने 20s में. तो फ्रेंड्स, There is no one who want to die rich. We may be born in a poor family, लेकिन हम सब अमीर मरना चाहते हैं. At the later stage of our life, हम सबको पैसे चाहिए, financial freedom चाहिए. So when we are in 20s, we are like free souls. No tension, no saving, no financial discipline. हम पे टू पे चेक में काम करते हैं. We get salary, we spend it because we think we are in 20s and this is the life to enjoy. But we realize these mistakes when we are married, when we have kids to take care of them, when their education has to be taken care of, and when we cross 40, become 45, then the retirement question will haunt you, like what you have saved for your retirement, because nowadays there is no financial security system जो कि आपके retirement को cater करेगा. So you need to take care of your retirement also. तो जो 45 years के बाद हमें वो चीज़ें रियलाइज़ होती है, मैं आज अपने छोटे भाई बहनों को या यंगस्टर्स को आई वांट टू एडवाइज दैट डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन आवर लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो एंड डिस्कस व्हाट आर दोज 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स व्हिच वी डिड इन आवर 20s. सो फर्स्ट मिस्टेक ऑफ द लाइफ इज नॉट डेवलपिंग अ फाइनेंशियल IQ. So in our old schooling system, which is still there in our schools, nobody, like there is no period how you want to become rich, how to manage your finances. ऐसा कोई भी classes, ऐसी कोई भी systematic education system हमारे schools में नहीं है जहाँ पे हमें अपने पैसे को, financial को manage करना सिखाया जाता है. So once you pass out from your college, you get a good job, you get a good salary, then you start spending it all. So you earn and you spend it all, you don't even save. So developing a financial IQ means you need to understand 4 things in your life. And what are those 4 things? Accounting. The first thing is accounting. You need to understand the cash flow, what you are earning and what you are spending. You need to understand investing. What are the investment options available for a young investor? Maybe equity, it may be gold, it may be real estate, or it may be a simple recurring deposit or fixed deposit. But all the avenues of a guy who is 20 years old or 25 years old, he should know that these are the available options available in the financial market. Third thing, understanding market. Market understanding means you should understand demand and supply. You should understand what is Nifty, what is BSE, what are the marketplaces जहाँ से मैं गोल्ड के बॉन्ड खरीद सकता हूँ. 1000 रुपये से भी SIP स्टार्ट करी जाती है, तो हाउ टू टेक एन SIP, म्यूचुअल फंड्स की अंडरस्टैंडिंग. तो ये एक यंगस्टर को जरूरी है अपनी स्किल्स में लाना, अपनी स्किल्स में डेवलप करना, भले ही वो फाइनेंस बैकग्राउंड से है या नहीं है. तीसरी चीज़ लॉज. चौथी चीज़ फाइनली लॉज की अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि लॉज में आप टैक्सेस पढ़ते हैं. तो बेसिक टैक्स अंडरस्टैंडिंग, बेसिक टैक्स प्लानिंग हर इंडिविजुअल और हर यंग यूजर को पता होनी चाहिए, जो कि आजकल हमारे 20s में जो लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं पता है. डोंट डैम केयर अबाउट दीज थिंग्स, और अपने 20s को तो बिल्कुल ऐसे जीते हैं जैसे अभी भी वो स्कूल चिल्ड्रन ही है. बट यस, दिस इज़ अ हार्ड वर्ड, दिस इज़ अ रियल वर्ड. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 20s इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ. Now, the second mistake is investing into liabilities, not into assets. The first thing, जब आपको पहला पेचेक मिलता है या आपको कॉलेज प्लेसमेंट मिली है, what is your wish list? लोगों के, बच्चों की wish list क्या होती है? तो what is their wish list? Buying a luxury car, buying a new iPhone X which costs around 1.5 lakh rupees, buying new gadgets, going on international vacations with your friends. ये सारी विश लिस्ट बिलीव में सब में होती हैं, लेकिन किसी की भी विश लिस्ट में ये नहीं होता
कि उसको एप्रिसिएटिंग एसेट्स बनाने हैं। तो जितने भी मैंने पहले बात करी है, आप कार खरीदते हैं, कार डेप्रिसिएट पर ईयर। जरूरी नहीं है कि कार नेसेसिटी हो, आपकी फैमिली में कार पहले से भी हो सकती है, बट दैट चार्म ऑफ गेटिंग अ न्यू जॉब, हाई पेइंग जॉब, you get into that lure that you want to buy a luxury car. So luxury car सिर्फ खरीदने का खर्चा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं. So you pay EMIs, you pay high insurance cost, you pay maintenance of that car and etc. बहुत सारी चीज़ें. तो वो एसेट, जो कार आपने 15 लाख की खरीदी, अगले साल 25% डेप्रिसिएट होकर वो कार 11-12 लाख रख के जाती है, और अगले 4 या 5 सालों में दैट उसकी वैल्यू करीबन नील हो जाती है. तो अपने अर्ली 20s में यू नीड टू क्रिएट दोज एसेट्स जो आपको आपके पैसे को पैसा बना करके दे. यू नीड टू इन्वेस्ट इन टू दोज एसेट्स जो आपको एक रिकरिंग इनकम दे. वी कॉल्ड इट पैसिव इनकम. सो यू स्टार्ट क्रिएटिंग पैसिव इनकम फ्रॉम योर 20s ओनली. You start investing into SIP. You can buy some gold fund. आजकल ETF, gold fund बहुत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चल रहे हैं. You need not to buy physical gold. तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो आजकल what mistakes we Indians did, like हम जो इन्वेस्टिंग और सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग की बातें करते हैं, that we start at the age of 40, not into 20s and 30. So 20 is the age, 30 is the age जहाँ पे हमें अर्ली स्टार्ट करना है. एंड दिस वाज द सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक. हम लाइबिलिटीज डेवलप करते हैं, एसेट्स डेवलप नहीं करते हैं. और आपको कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या ऐसे गैजेट्स नहीं खरीदने चाहिए, बट यस, वो गैजेट्स आपको तब खरीदने चाहिए जब उनकी खर्चे आपके नेटवर्थ को अफेक्ट ना करें. मतलब आपने इतनी सारी सेविंग्स और इतने सारे रिकरिंग इनकम के साधन बना लिए हैं कि उनका जो आउटगो है वो आपके फाइनेंशियली आपको पुअर ना बना रहा हो. सो ये था हमारा दूसरा मिस्टेक्स. नाउ वी कम इनटू थर्ड मिस्टेक आवर ऑफ फाइनेंशियल लाइफ. थर्ड मिस्टेक इज बिलीविंग यू कैन जस्ट सेव योर वे टू वेल्थ. सो वी डिले आवर फाइनेंशियल डिसीजन. हमें पता नहीं है कि डिले करने का कितना नुकसान होता है. हमें लगता है कि वी बिकम सो कैजुअल इन आवर 20s कि हम सोचते हैं आज से नहीं, अगले साल से, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे. सो आई विल गिव यू अ बेस्ट एग्जांपल इन प्रैक्टिकल लाइफ. सो एक 5000 का SIP जो आप लेट स्टार्ट करते हैं. लेट स्टार्ट मीन्स यू वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 50 एंड यू स्टार्ट योर SIP एट द एज ऑफ 30. सो यू हैव 20 years. 5000 का SIP for 20 years will give you maturity benefit at the rate of 15% of every year. The amount would be 67 lakhs. Now, अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने प्रीपोन करी, आपने पहली जॉब आपको 20-21 साल में मिली और आपने उस पहली जॉब से 5000 का SIP स्टार्ट किया, तो उस SIP को अगर आप 30 years चलाते हैं, बिकॉज नाउ फ्रॉम 20 to 50 you have 30 years to cover, so the maturity value of that 5000 SIP would be 2.82 crore. You believe me, 2.82 crore, same rate of interest. लेकिन आपने वो 10 साल दिए, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाया. सो टाइम इज़ मनी. तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा अपने रिटायरमेंट के लिए बचाएंगे, या उतना अपने लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे. तो सी द डिफरेंस. 10 साल का डिले हैव कॉस्टेड यू अराउंड 2.25 crore on the SIP of 5000 rupees. You can imagine late start can hurt you. Fourth mistake of financial life, being unaware of the cash flow quadrant. मैंने पहले एक आप लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी की बुक एडवाइस करी थी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट ऑफ योर लाइफ. सो एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को पता होना चाहिए कि वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस पार्ट में आता है. सो इफ़ यू आर, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 पार्ट होते हैं. E फॉर एम्प्लॉयज़, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन एंड I फॉर इन्वेस्टर. हम में से ज़्यादातर लोग E के फॉर्म में अपना करियर स्टार्ट करते हैं. ये कई सारे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, वो सेल्फ एम्प्लॉयड के फॉर्म में अपना करियर स्टार्ट करते हैं. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम व्हेन इज़ द राइट टाइम कि मैं, क्योंकि E और S के साथ एक ड्रॉबैक है दोस्तों. E को हमेशा जॉब करनी पड़ेगी. अगर उसे अपनी फाइनेंशियल लाइन इंटैक्ट रखनी है, अपनी लाइफ स्टाइल इंटैक्ट रखनी है, तो मुझे 60 साल तक जॉब करनी पड़ेगी.
I'm a banker, अभी भी मुझे जॉब करनी पड़ती है आफ्टर स्पेंडिंग 15 years ऑफ माई करियर। आज भी मेरे को ऑफिस जाना होता है, और अगर मैं चाहूँ कि मैं 2 महीने काम ना करूँ तो आई कैन नॉट सर्वाइव। मेरी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो डगमगा जाएगा। सेम एक डॉक्टर अगर अपनी प्रैक्टिस करता है और वो 2 महीने छुट्टियों में चला जाए तो 2 महीने उसकी कोई कमाई नहीं होने वाली, बिकॉज कोई कंसल्टेंसी इनकम नहीं मिलेगी उसे। तो नाउ व्हाट यू शुड डू, यू शुड नो व्हेन इज द राइट टाइम कि आपको ई से आई क्वाड्रेंट में आना है, एटलीस्ट सम पार्ट तो आना है। तो यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा आपको आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आपको 40s में भी मिल जाए, 40 बहुत अच्छी एज है लाइफ को एंजॉय करने के लिए, सिर्फ 20s में एंजॉय नहीं कर सकते, आप 40s में भी कर सकते हो। एंड यू कैन सी नाउ फिफ्थ मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ, फिफ्थ फाइनेंशियल मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ, नेवर यूजिंग फेलियर्स एज योर स्टेपिंग स्टोन। हम अपने 20s में बहुत ही बेसब्र होते हैं, वी डोंट हैव पेशेंस। तो हमने कोई काम स्टार्ट करें, वंस वी स्टार्ट, लेट्स सपोज हमने कोई जॉब स्टार्ट करी या हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, एंड दैट बिजनेस और दैट जॉब्स गेट फेल्ड, व्हाट वी डू, वी नया रास्ता ले लेते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे या नया कुछ करेंगे। बट नहीं, आपको अपनी गलतियों से से सीखना पड़ेगा। उन गलतियों से ऐसे सीखो कि उस गलती को आप अपनी सीढ़ी बना लो। इवन फॉर वाटर टू गेट बॉइल्ड इट नीड्स 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी कम एफर्ट लगता है, अगर आपने पानी को 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस पे 10 बार भी उबालेंगे ना 10-10 मिनट के बाद, so that water will not get boiled। तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है आपके एफर्ट का, उस थ्रेशोल्ड को आपको क्रॉस करना पड़ता है। यू नीड टू हिट दैट 100%। सो कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 50 बार 100 बार फेल हुए। यू रीड जैक मा, यू रीड थॉमस एडिसन, यू रीड वॉरेन बफेट, कितनी बार लोग फेल हुए, लेकिन इन्होंने जो चूज करा था, अपनी गलतियों से सीखा था, एंड दे केप्ट ट्राइंग एंड वंस दे बिकम सक्सेसफुल, वो इतने बड़े लोग बने कि द स्टोरी इज फ्रंट ऑफ द एवरीबॉडी नाउ। द सिक्स्थ मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, यूजिंग ऑल योर फ्री टाइम और ऑन एंटरटेनमेंट्स। ये तो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, क्योंकि नाउ वी आर लॉकडाउन सिंस लास्ट 45 days। बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे 20s और 30s के बच्चे ऐसे हैं, दे स्पेंड देयर एंटायर टाइम ऑन टिकटॉक, ऑन फेसबुक, ऑन नेटफ्लिक्स, ऑन अमेजोन प्राइम, और उस सारा का सारा 45 days आप इन्हीं सारी चीज़ों में स्पेंड करते हैं। I mean, these 45 days, if you have started your career, if you have started your business, you could have learned some skills in these 45 days. You could have done some online courses. बहुत सारे courses online available हैं, data scientist, analytics, any skills you could have learned in last 45 days. But what we did, अगर मैं आप खुद ही अपने लाइफ को 45 days रिवाइंड करके देखो, ये 45 days जो आपको वर्क फ्रॉम होम में मिले, या कई लोगों को बड़ा लेजर टाइम मिला, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में और टीवी देखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए अपने ये 45 days बिता दिए। तो नहीं, इस चीज़ को हम रीडिंग में, अपनी रीडिंग की हैबिट हमें पड़ जाती है, हम रीडिंग में यूटिलाइज कर सकते थे। यू नो, हर सक्सेसफुल लोग, मतलब यू टेक जुकरबर्ग, यू टेक स्टीव जॉब्स, यू टेक अब्राहम लिंकन, यू टेक वॉरेन बफेट, और यू टेक सत्या नडेला, इन सब लोगों में रीडिंग हैबिट्स हैं। जुकरबर्ग के बारे में तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहते हैं हर हफ्ते में 2 किताबें पढ़ते हैं। स्टीव जॉब्स हर महीने में 3 से 4 किताबें फिनिश करते थे। किताबें आपको कंटेंट देती हैं, किताबें आपको एक थॉट प्रोसेस देती हैं। यू रीड सक्सेस स्टोरीज, फाइनेंशियल सक्सेस की बुक पढ़ो आप, यू रीड एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ स्टोरीज पढ़ो, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, एंड मूवीज भी वो देखो विच विल मोटिवेट यू इनटू योर रियल लाइफ टू डू समथिंग बिगर। दूसरों के मिस्टेक से कैसे सीखना है, उसलिए उनको हमें पढ़ना जरूरी है। अगर फेसबुक बना, या माइक्रोसॉफ्ट बना, एप्पल बना, या स्नैपडील या अमेजोन बना, अलीबाबा बना, तो उसके पीछे सिर्फ सक्सेस नहीं है, उसके पीछे देयर हैव बीन 100 फेलियर्स। एंड इफ यू रीड दैट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन,
तो वो गलतियां आपको पढ़ने को मिलेंगी कि उसने अपनी स्टार्टिंग करियर में उन्होंने क्या गलती करी थी। तो वो गलती हो सकता है आप अवॉइड करो अगर आपने वो चीज़ पढ़ी है, वो चीज़ समझी है। तो वो किस टाइम पे आए? जब क्राइसिस टाइम था और जब लोगों के पास खाली टाइम था। तो दिस इज द क्राइसिस टाइम, दिस इज द खाली टाइम यू हैव। यूज योर ब्रेन इनटू न्यू आइडियाज, स्पेशली जो 20s में है, 30s में है। गेट सम स्टार्टअप आइडियाज। इस लॉकडाउन के बाद आप नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करो कि व्हाट आर द सेक्टर, व्हाट आर द इंडस्ट्रीज जिनकी डिमांड अब आगे चल के होगी, बिकॉज देर आर मेनी सेक्टर विच विल गेट वाइप्ड आउट। अगले, मैं हमेशा के लिए तो नहीं कह सकता, पर अगले साल 2 साल यू थिंक अबाउट दो जिम्स, हेल्थ क्लब्स, स्पास, ब्यूटी सैलून्स, मल्टीप्लेक्सेस की बात करो, मॉल्स की बात करो, होटल्स की बात करो, एविएशन इंडस्ट्रीज की बात करो, इन सबको बहुत नुकसान होने वाला है। बट उसी तरफ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं, कुछ ऐसी नेसेसिटीज़ भी सोसाइटीज़ में जनरेट होंगी जिसको अब आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यूज योर ब्रेन, रीड अ लॉट, do homework and get some new business ideas in this time. Now the 7th and last mistake of your financial life is being afraid of hard work and never taking any risk. हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है, स्कूल में पढ़ाई ऐसी होती है, हमारा सोसाइटी सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमें पहले दिन से सिखाया जाता है डू हार्ड वर्क, गेट अ हाई पेइंग जॉब, गेट अ हाई पेइंग एंड सिक्योर जॉब। आप में से किसके पेरेंट्स हैं जिन्होंने कभी सिखाया होगा यू ट्राई सम न्यू स्टार्टअप, ट्राई सम न्यू बिजनेस? सबके फादर ही कहते हैं इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, गेट अ गवर्नमेंट जॉब, गेट अ प्राइवेट जॉब, गेट अ IT जॉब। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बट द ज़माना है चेंज दोस्तों। नाउ यू नीड टू टेक द रिस्क, और रिस्क आप 40 साल में नहीं ले सकते। मतलब if you say कि I'm a 35 or 6-7-8-year-old daughter and I start a new venture, leave my job, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इम्पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है। द क्लासिक एग्जांपल इज मिस्टर विजय शेखर शर्मा, पेटीएम। उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट करके बिजनेस करा था, बट यू नाउ नो द स्टोरी। मैकडोनल्ड्स की स्टोरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ो, वो कब और किस उम्र में उन्होंने मैकडोनल्ड्स ने वो डेवलप करा, KFC कैसे बना। तो ये सारी स्टोरीज आप पढ़ो, ट्राई करो। 20s में यू कैन टेक रिस्क। आपका एक प्रोजेक्ट फेल होता है, देयर इज नथिंग टू लूज, यू हैव टाइम। 30-40 ईयर्स का आपके पास लाइफ में टाइम है रिसर्च करने का, नई चीज़ें ट्राई करने का। सो 20 इज़ द बेस्ट टाइम टू डू some new things, to take some new risk and learn from your life and become successful. तो ये 7 मिस्टेक्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि these are the 7 मिस्टेक्स अगर आप अपनी लाइफ में अवॉइड करते हो तो you can become successful, you can become rich, you can become financial free. So financial freedom is my ultimate motto कि आप अपने 40s 50s में जाके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे फील करें। उस 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में आपको ये ना सोचना पड़े कि अगर आपने ऑफिस जाना बंद कर दिया या आपने अपना क्लिनिक या अपनी शॉप बंद कर दी तो आपके पास आपकी लाइफ को बिताने के लिए पैसा नहीं है। सो कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ and give your ideas on the below comment box. If I'm able to help you, I'll be more than happy. So keep watching my channel. Thank you for watching us and please subscribe our channel. Thank you.